Good evening everyone, good evening to all of you. Most welcome to your own channel Right On and my name is Ravia। then ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਐਂਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੈਲਪ ਕਿਉਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 100 MCQs ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਨੋਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਗਰੁੱਪ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਔਨ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 25 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਇਲਿਪਸ। ਹੁਣ ਇਲਿਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, it was like 9x square plus 5y square minus 30y which is equal to 0। ਇਸ ਦੀ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ -6y, ਹਾਫ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਐਡ ਔਰ ਹਾਫ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ 5, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ y - 3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 45 ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 45 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 45, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 45 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? x² 5 plus y - 3 square upon 9 is equal to 1। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ a is always greater than b। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? a ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਮਾਈ a is equal to 9, ਮਤਲਬ a square is equal to 9 ਔਰ b square is equal to 5। ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is x² upon a square and plus y square upon b square ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? that is b square is equal to a square 1 minus e square। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਫਾਈਂਡ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 5 is equal to 9 and 1 minus e square, ठीक है जी। 5 upon 9 minus 1 is equal to minus e square। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। e square ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 4/9 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫੋਕੀ ਇਜ਼ 2। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਿਪਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? that is plus minus a is 0 if I am not wrong। so a plus minus a is 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? a is 0 ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? minus a is 0 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 2ae is equal to 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, है ना। क्योंकि ए भी मेरे को AE है, ए भी मेरे को AE है, तो 2AE डिस्टेंस मेरे को किहदे इक्वल हो गया? 2 ਦੇ इक्वल हो गया। तो क्लीयर जी गल है। मेरे को कितना बन जाएगा? AE इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो मेरे को A इंटू E की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है जी। अगे चलिए, अगे इन्होंने मैंने किया होया द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिस, ठीक है। हुण जो तुहानूं पता है कि एक डायरेक्ट्रिस इत्थे हुंदी है, एक इत्थे हुंदी है। सो डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन मेरे को कितनी हुंदी है? प्लस माइनस A अपॉन E। सीधी जी गल है। सो ऑब्वियसली एक पॉइंट मेरे को कितना होएगा? a अपॉन e 0 होएगा और एक पॉइंट मेरे को कितना होएगा? a अपॉन e माइनस a अपॉन e 0 होगा, ठीक है जी। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? a upon e 0। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ a upon e 0। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 2a upon e which is equal to 5 और ये मैंने दिता कितना होया? 5 दिता होया। सो मेरे को a upon e दी वैल्यू मेरे को कितनी आ गई? 5 upon 2 आ गई,
तो मेरे को 2 इक्वेशनस बन गई। ए मेरे को 1 के इक्वल है, तो मैं कह सकती हाँ कि मेरे को ई की वैल्यू मेरे को 1/a के इक्वल, ठीक है, ये पुट कर दी कर देने। सो ये पुट करांगे तो मेरे को कितना बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 5 इंटू ई की जगह तो मैंने 1/a लिख लिया। सो मेरे को बन गया a² इज इक्वल टू 5/2। सो मेरे को a² की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 आ गई। अगर मेरे को a² की वैल्यू 5/2 है, ये मैं दोनों साइड से स्क्वायर कर देनी है, a² e² इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो a² की वैल्यू तो मेरे को 5/2 है, तो e² की वैल्यू मेरे को कितनी हो जाएगी e² इज इक्वल टू 2/5। सो a² अपॉन ते मैनू पता है कि जेकर मैंने b² फाइंड आउट करना है तो मैथड मेरे को की होंगे b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e²। नैक्सट पेज से करते हैं, b² की वैल्यू मेरे को कितनी है दैट इज 2/5। सॉरी b² तो मैंने पता ही नहीं, a² की वैल्यू है 5/2 और 1 माइनस e² की वैल्यू है 2/5। सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करके मेरे को कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो। सॉल्व करके मेरे को कितना आ जाएगा 5/2 इंटू 3/5। तो सॉल्व करके मेरे को सीधा सीधा b² की वैल्यू आ गई विच इज 3/2, विच इज 3/2, ठीक है। और मैंने पता है कि जो मेरे को इलिप्स की इक्वेशन होंगी है दैट इज x² अपॉन a², और a² की वैल्यू कितनी है देखो इतने 5/2 है, x अपॉन मतलब मेरे को कितना बन गया ये चीज बन गई, प्लस y² अपॉन b² b² की वैल्यू कितनी है a है विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो सॉल्व कर लो, मेरे को कितना बन जाएगा 15 एल्सियम लेके आऊगा, 15 जो एल्सियम लेके आऊगा तो मैं उसको एल्सियम ले लैनी हाँ। मेरे को कितना बन जाएगा नीचे ऊपर मेरे को हो गया 6x² प्लस 10y² विच इज इक्वल टू 15। सो ये मेरे को की होगी इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी। सो देख लो विच ऑप्शन इज राइट हियर, आई थिंक सो बी ऑप्शन इज राइट हियर, 6x² प्लस 10y² इज इक्वल टू 15। स्टिल कितने कोई डाउट होया देन जरूर पूछियो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कॉनिक। एक कॉनिक दी हुई है, उसके विच मैनू की पूछा गया, उसका लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया। लेटेस्ट रेक्टम एक कॉनिक का तो क्लीयर जी गल है, पहली गल तो इलिप्स होगा बट स्टिल चलो देखते हैं, इसनों बना लें। मेरे को की दिता होया 3x² प्लस 4y² माइनस 6x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो डोंट फॉरगेट टू कि हाफ द स्क्वायर मैंने की करना है ऐड करना है, हाफ द स्क्वायर मैंने की करना है माइनस करना है। सो पहले तो x वाले इकट्ठे कर लो, ठीक है जी। ये हाफ द स्क्वायर मतलब 3 द स्क्वायर मेरे को 9 इधर भी ऐड होएगा और 9 मेरे को उधर भी ऐड होएगा, ठीक है। और y द स्क्वायर प्लस 8y हाफ द स्क्वायर मतलब 4 द स्क्वायर 16 इधर भी ऐड होएगा और 16 इधर भी ऐड होएगा। ए वाला 5 मैं उधर ले जानी है तो प्लस 5 हो गया। हुण ए मेरे को कितना बन गया, ये मेरे को बन गया x, नो 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 मैंने इत्थे पहला कोफिशिएंट इक्वल करना सी, राइट, सॉरी रुको रुको, इसनू ऐदा ना करो, खत्म ही करो इसनू प्रॉपरली, क्योंकि इत्थे अपने को कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। सो कोफिशिएंट नू पहला बनाना पेगा है ना, सो उहदे अकॉर्डिंग करना पऊगा। चलो देखो अपने को इक्वेशन की दी हुई है दैट इज 3x² प्लस 4y² माइनस 6x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है मेरे को, किस इक्वेशन है, कॉनिक की इक्वेशन है। सो ये मैंने की फाइंड करना है, लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। सो देखते हैं किवें करिए हुण आपां। हुण क्योंकि ये मेरे को 3 मैनू पहला कॉमन कढ़ना पैना, सो ये गलती थोड़ी जी अपनी रह गई सी। सो 3 पहला तो मैं x वाले इकट्ठे कर लैनी हाँ, ठीक है, और मैं y वाले भी इकट्ठे कर लैनी हाँ, और जो 5 है उन्होंने आप उधर भेज देने लाइक दिस। हुण ये विचों पहला आप की करांगे 3 नू कॉमन कढ़ांगे ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकीए, ठीक है। और ये आप 4 नू कॉमन कढ़ांगे ताकि इसका आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकीए। और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थोड़ा पता है कि तुसी की करना है, हाफ द स्क्वायर ऐड करना है, हाफ द स्क्वायर माइनस करना है। अगर तुसी इस दे विच हाफ द स्क्वायर ऐड करोगे तो मतलब तुसी 1 नू ऐड कर रहे हो, तो तुसी उधरली साइड भी की करोगे, तुसी किदा हाफ द स्क्वायर मतलब 1 ऐड कर रहे हो, ठीक है। बट इत्थे ध्यान रखो कि जो तुसी माइनस करोगे तो थोड़े कोल -3 बनूगा और ये थोड़े कोल इधर ऐड हो जाऊगा, ठीक है। सिमिलरली इधर मेरे को +4 ऐड हो जाऊगा, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होंगे। सो ये मेरे को की बन गया 3x-1 होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 and 4 12, ठीक है जी। क्योंकि मैंने इत्थे की चाहिए 1 चाहिए, सो डिवाइड बाय 12 हर जगह। सो मेरे को कितना आ गया, मेरे को आ गया x-1 द होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3 विच इज इक्वल टू
1 ठीक है जी। ये मेरे को इलिप्स की इक्वेशन बन गई। सो क्लीयर जी गल है, मेरे को ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और बी की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई √3 आ गई। ਜਾਂ ए स्क्वायर मेरे को 4 आ गया, बी स्क्वायर मेरे को 3 आ गया। मैंने की फाइंड करना है, लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। लेटेस्ट रेक्टम ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ लेटेस्ट रेक्टम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेटेस्ट रेक्टम ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2b² a। अगर मेरे को लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a होंगे तो 2b² की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2, तो सोल्व कर लो कितना आ गया 3। सी इजी। सो विच ऑप्शन इज राइट हेयर? सी ए ऑप्शन इज राइट हेयर। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के उपर। क्वेश्चन नंबर 4 के देखो की क्या होया, ये मैंने की करनी है, इस इलिप्स का सेंटर देखना है ठीक है। एक इलिप्स दिता होया और इस इलिप्स का मैंने की देखना है सेंटर देखना है। तो तुसी ध्यान नाल देखो, मैनू लगता है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस थोड़ा ये की कर दिता गया क्वेश्चन नू लेटेस्ट रेक्टम की जगह इलिप्स पूछ लिया गया। सो देखिए जेकर ध्यान नाल 3x² + 4y² -6x + 8y -5। सो ये मैं इतने हुण मेहनत नहीं करूँगी, मैनू पता है कि यदा जो सेंटर है वो सेंटर कितना है 1 and -1 है। सो ਇਹਦਾ सेंटर थोड़े सामने है कि ਕਿਹੜੀ ऑप्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ राइट होगी, x - x1 ਹੁੰਦਾ ठीक है। सो मेरे को इक्वेशन बनी है x - 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ अपॉन 4 प्लस y + 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1 ठीक है। सो सेंटर देख लो जी की होएगा, ऑब्वियसली बी ऑप्शन राइट होगी, नो डाउट ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के उपर। 5th क्वेश्चन के की दिता होया, इसलिए मैंने की करनी है इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। की फाइंड आउट करनी है? इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। सो मेरे को जो दिता होया दैट इज 3x² + 4y² इज इक्वल टू 24। सो थोनू पता है कि मैनू तो जी इक्वैलिटी दे विच 1 चाहिए। सो कुछ भी हो गई, मैंने 24 के नाल की कर दिता डिवाइड कर दिता, तो मेरे को कितना बन गया x² अपॉन 8 प्लस y² अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1। a² की वैल्यू आ गई, b² की वैल्यू आ गई। मैंने की करनी है इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। इसेंट्रिसिटी मेरे को हुंदी की इक्वल है, इसेंट्रिसिटी मेरे को हुंदी है b² विच इज इक्वल टू a² 1 - e²। b² की वैल्यू कितनी है जी 6 ठीक है। a इज ऑलवेज ग्रेटर दैन b, सो इस चीज़ में ध्यान रखियो ठीक है। और a² की वैल्यू कितनी है 8 ठीक है, और इंटू 1 - e²। सो इधर जाके मेरे को कितना हो जाएगा 6/8 इज इक्वल टू 1 - e²। मेरे को कितना बन गया, मेरे को बन गया 3/4 -1 इज इक्वल टू -e²। तो मेरे को कितना बन गया 1/4 बन गया विच इज इक्वल टू e²। तो e की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। नो डाउट 1/2 इज माई आंसर ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के विच की पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 के विच पूछा हुआ है कि अगर x इज इक्वल टू दिस दिता होया और y इज इक्वल टू दिस दिता होया, तो कहते हैं किनू रिप्रजेंट करती है? ये सर्कल नू रिप्रजेंट करती है, इलिप्स नू रिप्रजेंट करती है, पैराबोला नू रिप्रजेंट करती है, या हाइपरबोला नू रिप्रजेंट करती है ठीक है। सो मेरे को x की वैल्यू की दी हुई है a 1 - t² अपॉन 1 + t²। y मेरे को की दी हुई है 2bt अपॉन 1 + t²। तो मैनू एक गल पता है कि जेकर मैं यह चीज़ फाइंड कर ला कि x² अपॉन a² तो y² अपॉन b², तो मेरे वास्ते थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि सर्कल इलिप्स से किते ना किते सारा कुछ इस फॉर्मैट के ही होंगे। सो x अपॉन a की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 1 - t² अपॉन 1 + t² आ गई ठीक है। और y अपॉन b की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 2t अपॉन 1 + t² आ गई ठीक है। सो हुण इहदे विच जेकर मैं दोनों साइड ते स्क्वायर कर रही हाँ, तो मेरे को कितना बन गया x² अपॉन a²। तो इधर भी मैंने स्क्वायर करना पऊगा तो इधर भी मैंने स्क्वायर करना पऊगा। स्क्वायरिंग करके मेरे को कितनी बन गई, मेरे को बन गई 1 - t² दा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + t² दा होल स्क्वायर। एडिशन कर देने दोनों का, तो मेरे को बन गया 2t² अपॉन 1 + t² दा होल स्क्वायर ठीक है। ये चीज़ बन गई। हुण इनू सोल्व करना पऊगा। देखो नीचे कुछ ना करो, नीचे मेरे को की बन गया 1 + t² दा होल स्क्वायर बन गया। ऊपर भी जेकर मैं इसनू सोल्व करा तो मेरे को 1 - t² दा होल स्क्वायर प्लस 4t² बन गया। जो तुम इसनू ओपन करोगे ना, थोड़े कोल अपने आप की बन जाऊगा, थोड़े कोल आही चीज़ बनूगी। तुम इसनू ओपन करके देख लो, ये अपने को सीधी सीधी आइडेंटिटी होंगी है, इसलिए मैं सीधा सीधा पुट कर रही हूँ इज इक्वल टू 1 आ जाऊगा। तो कहने का मतलब जो मैंने x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² किया तो मेरे को इज इक्वल टू 1 आ गया। ये मेरे को की बन गया, ये तो मेरे को इलिप्स बन गया। सो विच ऑप्शन इज राइट हियर? बी ऑप्शन इज राइट हियर। अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 7 के उपर। 7 क्वेश्चन के दिता होया हाँ जी, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। कहते डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स मेरे को कितना होएगा
और मैनू इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 24 फ्रॉम इट्स फोकी। हुण जिहड़ा तुसीं सम ऑफ डिस्टेंस कढोगे तो डिस्टेंस होएगा कित्थों, फोकस तो होएगा। ठीक है, सो पहली गल तो इक्वेशन मैनू थोड़ा जिहा सिंपलीफाई इसनूं कर लैंदे आ। x² 8 प्लस y² 6 इज इक्वल टू 1 बनूगी। ये आपां पढ़ के आए हुए हैं और a² की वैल्यू मेरे को कितनी है, 8 है। ठीक है, हुण इन्हां ने किहा फोकस तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, तो क्लीयर जी गल है सम ऑफ डिस्टेंसिस मेरे को कितना हुंदा है, मेरे को 2 into a हुंदा है। ठीक है, इसमें अपने माइंड च क्लीयर कर लो कि मेरे को सम ऑफ डिस्टेंसिस फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है, और मेरे को की हुंदा है 2 into a हुंदा है। ठीक है, सो वो मेरे को की होएगा 2 into a, मतलब 2 into a की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2 आ गई, तो मतलब मेरे को कितना बन गया 4√2 बन गया। तो विच ऑप्शन इज राइट हियर, बी ऑप्शन इज राइट हियर। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ ਆਫ ਐਨ ਇਲਿਪਸ ਹੂਜ਼ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਇਲਿਪਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, a ਹੁੰਦੀ ਹੈ, b ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन की दिता हुआ है द इक्वेशन मैंने की दी हुई है x² अपॉन 2 माइनस r प्लस y² अपॉन r माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इदा करके मैंने इक्वेशन दी हुई है। कहते हैं की करती है, रिप्रजेंट करती है इलिप्स नूं। अगर यह इलिप्स नूं रिप्रजेंट करती है तो दसो मेरे को इन्हां चारां दे विचों किहड़ी कंडीशन जो है वो सही होगी। जेकर थोड़ा जिहा तुसीं सोच के देखो कि मेरे को यह इलिप्स नूं रिप्रजेंट करती है, तो पहली गल तो इलिप्स की जो इक्वेशन है वो हुंदी की है। ठीक है, अगर तुसी इस फॉर्मैट दे विच लिखी है तो इस फॉर्मैट दे विच ही चलते हैं, है ना। इलिप्स की इक्वेशन मैनू कहती है कि जेकर थोड़े कोले लाइक ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस समथिंग कुछ f इज इक्वल टू 0 है, तो इन दैट केस थोड़े कोल 4 into ac जो है वो की होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो जेकर थोड़े कोल b² माइनस 4ac जी, इस केस के विच कहते जो थोड़े कोल b² माइनस 4ac है वो थोड़े कोल की होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 क्यों होना चाहिए, थोड़ा चंगे तरीके नाल पता है, आप ये सारिया प्रॉपर्टीज पढ़िया हुई ने। ठीक है, सो जी भी सैकेंड डिग्री की इक्वेशन होगी उसके जेकर वो रिप्रजेंट कर रही है किसी इलिप्स नूं तो वह डिस्क्रिमिनेंट की होएगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो पहला तो इसमें इस फॉर्मैट के क्लीयर कर लें। x² के नाल की लग्या हुआ है 2 माइनस r लग्या हुआ है, तो मतलब a की वैल्यू तो मेरे को कितनी आ गई 1 अपॉन 2 माइनस r आ गई। ठीक है, सो अगर मैं देखा तो b की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, b की वैल्यू मेरे को आ गई 1 अपॉन r माइनस 5। ठीक है, तो मेरे को कितना हो गया b की वैल्यू, b की वैल्यू मेरे को xy का कोफिशिएंट तो 0 ही है, तो 0 आ गया -4। a की वैल्यू मेरे को कितनी है 2 माइनस r, और c की वैल्यू ये मेरे को c की वैल्यू होगी, c की वैल्यू मेरे को कितनी होगी r माइनस 5 होगी। इनू मैंने की रखता लेस देन 0। सो क्लीयर जी गल है, बस इसमें सॉल्व कर लो, सॉल्व करके थोड़े को आंसर आ जाऊगा। ठीक है, सो मेरे को कितना बन गया 4 into 4 अपॉन 2 माइनस r और r माइनस 5 ये मेरे को ग्रेटर देन 0 हो जाऊगा जो नैगेटिव के नाल मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, सो इसमें सॉल्व कर लो, सॉल्व करके थोड़े को फैक्टर्स बन जाएंगे, फैक्टर्स बना के थोड़े को हो जाऊगा आंसर आ जाऊगा। सो मेरे को कितना बन गया, मेरे को बन गया 4 है। ठीक है, तो क्लीयर जी गल है, जेकर आह पूरी की पूरी चीज़ ग्रेटर देन 0 है तो जो 2 माइनस r एंड r माइनस 5 है ये इनक्वालिटी है। इनक्वालिटी अपन पता है कि जेकर ये चीज़ है तो मेरे को ये दोनों लेस देन 0 होने चाहिए ने। अगर ये दोनों लेस देन 0 ने तो सीधी जी गल है, मेरे को की हो जो सॉल्व कर लो, सॉल्व करके थोड़ा आंसर आ जाऊगा। ठीक है, सॉल्व जो करोगे तो थोड़े को कितना बन जाऊगा, थोड़े को बन जाएगा एक थोड़े को r माइनस 2 है, एक थोड़े को r माइनस 5 है, और दोनों की ने लेस देन 0 ने। ठीक है, अगर वो दोनों लेस देन 0 ने तो अपने को की बनेगा, एक चीज़ ग्रेटर होगी, एक चीज़ लैस होगी, मतलब एक नैगेटिव साइन तो होना चाहिए थोड़े को, पर इस नैगेटिव पॉजिटिव करने की भी लोड़ नहीं, माइनस कॉमन कट के कर लो तो थोड़े को सिंपल बन जाऊगा r माइनस 5 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है तो दोनों ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, दोनों या फिर नेगेटिव होंगे। नेगेटिव हो नहीं सकते तो पॉजिटिव ही लेके चलांगे। ठीक है, अगर नेगेटिव हो गई तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा विच इज़ नॉट राइट, है ना। सो अपने को सीधी जी गल है, क्लीयर जी गल है कि r भी मेरे को की होएगा ग्रेटर देन 2 होएगा और r मेरे को ग्रेटर देन 5 भी होगा। तो देख लो कि ऑप्शन ये राइट हो जाती है। सो a भी सही है और b भी सही है। ठीक है, अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 10 के 10 क्वेश्चन के दिता हुआ है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिस ऑफ द इलिप्स। इस इलिप्स की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस मैंने की करनी है, कढ़नी है।
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होंगी की है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई होंगी है बिल्कुल। सो मेरे को इतने मैं पहला इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी पऊगी बिल्कुल। तो इसेंट्रिसिटी मेरे को की होंगी है बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर। सो बी स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी है 25 अपॉन 16 मैं 2 स्टेप इकट्ठे कर दिते। सो इतने मेरे को कितना आ गया 25 अपॉन 16 माइनस 1 माइनस ई स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 9 अपॉन 16 मतलब ए की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 3 अपॉन 4 आ गई। ठीक है, और मैंने की कढ़नी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू मेरे को है 5 जी ए इज ग्रेटर दैन बी राइट। सो मैंने लगता मैं थोड़ी जी वैल्यूज उल्ट लगी तो कोई फर्क नहीं पैंदा बी अपॉन ए आ जाऊगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो 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 इन दिस केस मेरे को इसेंट्रिसिटी बनेगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई बनूगी क्यों क्योंकि इतने थोड़े को जो है आ वाली वैल्यू जो है इस तो ग्रेटर है। सो ये ऑप्शन तो कोई होर अवेलेबल है ही नहीं y वाली तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है बट स्टिल इसमें सॉल्व भी कर लियो सॉल्व करके थोड़े को आंसर भी आ जाऊगा। ठीक है, अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो उन्होंने सही भी कर दियो। ठीक है जी, क्लियर है क्योंकि मैं भी थोड़ी जी वैल्यूज उल्ट फुलट लगी। सो इस ये थोड़ा होमवर्क लगा लो तो वैसे भी क्लियर जी गल है एक ही ऑप्शन है तो ये ऑप्शन ये राइट होगी। ठीक है, अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन दिता हुआ है द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स एक इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है जिहदा लेटेस्ट रेक्टम उसके मेजर एक्सिस का हाफ है। ठीक है जी, उसके मेजर एक्सिस का की है हाफ है। पहली गल तो इलिप्स मैंने की दिता हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, हुण ये मेरे को की है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की गल की है तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको सारिਆਂ ਨੂੰ पता है की होंगी है 2b स्क्वायर अपॉन ए होंगी है। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहते ये मेजर एक्सिस का हाफ है। तो पहला तो आप गल कर लीए भी इसनों किसी भी वैल्यू के इक्वल रखने तो पहला तो मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगी। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेरे को कितनी होंगी है मेजर एक्सिस किहड़े होंगे ने जिहड़े अपने को ग्रेटर होना है ना। तो क्लीयर जी गल एक सिंपल जा एक्सिस है तो ये मेरे को होगा मेजर एक्सिस होगा। सो मेजर एक्सिस की वैल्यू मेरे को कितनी होंगी है 2a होंगी है दिस इज a एंड दिस इज ऑल्सो a। सो मेरे को 2a होंगी है। ठीक है, सो अगर मेरे को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a है तो मेरे को कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू a क्योंकि यदा हाफ है तो यदा हाफ करके a आ जाऊगा तो मेरे को कितना बन गया 2b स्क्वायर की वैल्यू मेरे को a स्क्वायर के इक्वल आ गई। इन्होंने मैंने फाइंड आउट की करने की है इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने की है। इसेंट्रिसिटी मैंने कहती की है इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होंगे वो फॉर्मूला होंगे की है दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। सो मैं इतने ए स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर पुट कर देनी हाँ। ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर सो बी स्क्वायर नाल बी स्क्वायर हो गया कैंसल। सो 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2 आ गई। सो क्लीयर जी गल है ई की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 1 अपॉन रूट 2 आ गई। सो विच ऑप्शन इज राइट हेयर ए ऑप्शन इज राइट हेयर। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन की दिता हुआ है किसी भी इलिप्स के द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी कितना दिता हुआ है 6 दिता हुआ है एंड इट्स माइनर एक्सिस कितने दिते हुए हैं 8 दिते हुए हैं। दैन इसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो फाइंड करनी है क्योंकि इन्होंने कहा है डिस्टेंस बिटवीन द फोकी तो फोकी के डिस्टेंस कितना होंगे 2 इंटू ए ई आप पिछे करके आए हैं और मैंने कितना दिता हुआ है 6 दिता हुआ है तो मतलब ए ई की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 3 आ गई। ओके, एंड ये जो माइनर एक्सिस ने माइनर एक्सिस मेरे को किहड़े होंगे ने देखो ध्यान नाल माइनर एक्सिस मेरे को किहड़े होणगे जेकर ये मेरे को मेजर एक्सिस ने आ वाले एक्सिस मेरे को मेजर होंगे ने तो माइनर एक्सिस किहड़े होंगे ने माइनर एक्सिस मेरे को होंगे ने ए वाले। ठीक है जी, सो इन्हों की जो लेंथ है वो मेरे को कितनी होगी 2ab होगी। ठीक है, 2b होगी और इन्होंने कहा है इसके जो माइनर एक्सिस ने वो मेरे को 8 ने तो क्लीयर जी गल है b की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 4 आ गई। अगर मेरे को b की वैल्यू 4 है a e की वैल्यू 3 है तो सोल्व करने आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत आऊगी। इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है कर लो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, सो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। ठीक है, सो मेरे को a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, सो 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी होगी इज इक्वल टू ए क्योंकि मैंने पहला ए स्क्वायर की वैल्यू कढ़नी पेगी तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी होगी 25 होगी तो ए स्क्वायर वैल्यू मेरे को 25 होगी। हुण मैं इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकती हाँ। ठीक है, हुण मैं कल्ली इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकती हाँ। सो ई की वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी 3 अपॉन ए ई इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 दैन विच ऑप्शन इज राइट हेयर बी ऑप्शन इज राइट हेयर। अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 13 के उपर 13 क्वेश्चन के पूछा गया है कहते इन्होंने चारों के विचों जेकर मैंने एक लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी
इज अ टेंजेंट टू द इलिप्स। कहते की है टेंजेंट है इस इलिप्स की, किहड़े इलिप्स की, जो मैनू इस करके दिता होया, ठीक है। ऐदा करके मैंने एक इलिप्स दिता होया, कहते उहदी टेंजेंट है, तो दसो जिहड़ा सी होएगा वो सी किहदे कोल होगा। आपां नूं सारिआं नूं पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हुंदी है एक इलिप्स दे विच। इलिप्स दे विच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे कोल की हुंदी है, दैट इज ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। हेयर जो मेरे को अगर आप वैल्यूज लिखने की कोशिश करिए तो ए स्क्वेयर मेरे को इतने जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन किद्दां बनेगी, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एल की वैल्यू मेरे को की है एम है, मतलब एम स्क्वेयर बन गया, प्लस बी स्क्वेयर तो बी स्क्वेयर ही है। एम की वैल्यू मेरे को कितनी है, इतने -1 है, ठीक है। एम की वैल्यू मेरे को कितनी है -1, तो -1 का स्क्वेयर करोगे +1 बन जाऊगा, इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, तो मेरे को कितना बन गया, सी स्क्वेयर बन गया। तो क्लियर जी गल है, विच ऑप्शन इज राइट हेयर, ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब बी ऑप्शन इज राइट हेयर, ठीक है। उम्मीद है मैंने कितने भी कोई भी मिस्टेक नहीं की होगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P लाई ऑन, कहते सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस दसना है। हुण सम ऑफ फोकल डिस्टेंस आप पढ़ के आए थे, दैट इज 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू ए, ठीक है। अगर 2 इंटू ए है तो थोनू पता है कि एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। सो ए की वैल्यू मेरे को कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। सो 3 सॉरी हाँ जी, तो ए ग्रेटर दैन बी, मतलब ऑब्वियसली ए की वैल्यू मेरे को कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 4 होगी तो 2 इंटू ए मेरे को कितना हो जाऊगा, 8 हो जाऊगा। सिंपल क्लियर। चलो अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के उपर। 15 क्वेश्चन दिता होया y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस सी इसनू टच करती है तो दसो जी मेरे को की सी की वैल्यू आती है। सो याद करो आपने पिछे हुणी इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी लिखी सी, क्योंकि अगर टच करके जा रही है तो ऑब्वियसली वो उसकी की होगी, टेंजेंट होगी। सो मेरे को है कि ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, ठीक है। अगर मैं देखा ध्यान नाल तो मेरे को ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, 3 है, बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, 4 है, और एल की वैल्यू मेरे को कितनी है, 2 है, और एम की वैल्यू मेरे को कितनी है, -1 है, एन की वैल्यू मेरे को सी है। मैंने सारी वैल्यूज लिख ली, ठीक है। सो ए स्क्वेयर की वैल्यू मेरे को कितनी है, ओके, ए इज ग्रेटर दैन बी, राइट। सो इतने थोड़ा चेंज कर लो, इतने बी करो, इतने ए करो, ठीक है। सो ए इज ग्रेटर दैन बी, राइट। सो ए की वैल्यू मेरे को कितनी है, 4 है, 4, एंड एल की वैल्यू मेरे को कितनी है, 2 है, ठीक है जी, प्लस एंड इस तो बाद गल की जाए बी स्क्वेयर की, तो बी स्क्वेयर मेरे को कितना है, 3 है, और एम की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वेयर करोगे 1 आ जाएगा। एन स्क्वेयर की वैल्यू मेरे को कितनी है, सी का स्क्वेयर है, तो सी की वैल्यू मेरे को कितनी हैगी, 8 प्लस 3 विच इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ये क्या हो गया, wait for 1 minute, I don't think so, b square is equal to 3 and m square is 1, क्या हो गया, सॉरी अगेन सेम मिस्टेक। सो इस जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के होना चाहिए। सो अपने को ए की वैल्यू इतने 3 ही होगी। सो ए इज इक्वल टू ए स्केयर इज इक्वल टू 3, बी स्केयर इज इक्वल टू 4, एंड बाकी सारिया वैल्यूज थोड़ा पता ही नहीं। सो मेरे को कितना बन जाएगा, ए स्केयर एल स्केयर प्लस बी स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के होना चाहिए। सो ए स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी है, 3, और एल की वैल्यू मेरे को कितनी है, एल स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी है, 4 हो जाएगी, है ना। नहीं वेट, क्लियर। नेक्स्ट अगर गल की जाए 1 मिनट ओनली, हाँ जी, तो नेक्स्ट ये पुट करके देखो, हाँ जी 3 एंड 4, उस तो बाद मेरे को आ गया बी स्केयर मेरे को कितना है, बी स्केयर इज 4 एंड एम स्केयर मेरे को -1 का स्केयर 1 ही आ जाऊगा, एंड सी स्केयर, ठीक है। सो मेरे को कितना बन गया 12 प्लस 4, तो सी स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 16, मतलब +-4, मतलब ए ऑप्शन इज राइट हियर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 16 लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है इस इलिप्स का। सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 45 नाल डिवाइड कर दो तो इतने मेरे को कितना हो जाएगा 9, इतने मेरे को कितना हो जाएगा 5, और इतने मेरे को कितना हो जाएगा 1। इसका लेटेस्ट रेक्टम मेरे को की होंगे 2b स्क्वेयर अपॉन ए के इक्वल होंगे, ठीक है जी। सो 2b स्क्वेयर अपॉन ए की वैल्यू मेरे को b तो ग्रेटर होएगी। सो ए मेरे को कितना है, सो ए की वैल्यू मेरे को आ जानी है 3, और बी स्क्वेयर की वैल्यू मेरे को कितनी है 5। सो क्लियर जी गल है, मेरे को आ गया 10/3। सो विच ऑप्शन इज राइट है, सी ऑप्शन इज राइट है। नैक्सट इज क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है द फोकी
the foci of the ellipse and the hyperbola are coincide then value of b square। ठीक है, कहते जो इसकी फोकी है एंड इसकी फोकी है वो की ने सेम ही ने, तो जो b स्क्वेयर की वैल्यू है वो दसो मैनू कितनी होगी। ठीक है जी, हुण देखो अपने को इलिप्स की जो फोकी है वो अपने को की हुंदी है, इस क्वेश्चन में थोड़ा जिहा सही कर लो, ये थोड़ी जी मिस्टेक है, इतने अपन ए स्केयर की वैल्यू जो है वो गिवन है और ए स्केयर की वैल्यू जो है दैट इज 16। ठीक है जी, सो इस मिस्टेक में थोड़ा सही कर लो, 16 + y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करके सारा कुछ थानू दिता होया है। हुण इहदे विच आपां नूं क्या है, कहंदे जो हाइपरबोला गिवन है, पहली गल तो हाइपरबोला की दिता होया ये दिता होया है, इसनूं थोड़ा सिंपलीफाई करना पऊगा क्योंकि आपां नूं जो हाइपरबोला दिता होया उहदे विच आपां नूं इक्वैलिटी दे विच 1 चाहिदा है। अगर इक्वैलिटी दे विच 1 चाहिदा तो आपां नूं की करना पएगा 25 दे नाल हर जगह मल्टीप्लाई करना पऊगा। सो मेरे को की बन गया, मेरे को बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 144/25। ठीक है जी, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 अपॉन 25। ठीक है, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब मेरे को ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे को ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144 अपॉन 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को आ गई 81 अपॉन 25। ठीक है, सो इदा करके तुसी जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज पहला तो इलिप्स दे विच हाइपरबोला दे विच सिंपलीफाई करो। ठीक है, हुण क्योंकि आपां नूं पता है इसेंट्रिसिटी जो है आपां नूं फाइंड आउट करनी ही पऊगी क्योंकि फोकस की गल हो रही है, फोकस विच ए ई हुंदा है। ठीक है, सो आपां की करदे इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लैंदे आ। हाइपरबोला दे विच जो इसेंट्रिसिटी हुंदी है वो की हुंदी है, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 विच थोड़ा हाइपरबोला भी आ गया स्टिल। ठीक है, सो ये मेरे को की होंगी सेंट्रिसिटी ए होंगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ई स्क्वायर माइनस 1। सो इनू थोड़ा जिहा सोल्व कर लो, सोल्व करके थोड़े को की हो जूगी सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जूगी। ठीक है, और सेंट्रिसिटी की वैल्यू थोड़े को कितनी आएगी, थोड़े को आएगी 81 अपॉन 25 विच इज इक्वल टू 144 अपॉन 25 ई स्क्वायर माइनस 1। सो ई स्क्वायर माइनस 1 मेरे को किस दे इक्वल आ गया, मेरे को आ गया 81 अपॉन 144 दे इक्वल आ गया। और इधर आके इन्हें की हो जाना है +1 हो जाना है, तो कुल मिला के मेरे को ई दी वैल्यू की आ जूगी। आराम नाल सोल्व करके देखियो 15 अपॉन 12 आ जूगी बड़ी ईजीली। इसेंट्रिसिटी मेरे को आ गई। हुण कहंदी जिहड़ी तुहाडे कोल इस हाइपरबोला दी इसेंट्रिसिटी सी वो तुहाडे कोल सेम इस इसेंट्रिसिटी दे नाल है। ठीक है, हुण इलिप्स दी इसेंट्रिसिटी की हुंदी है, सॉरी फोकी दे नाल है। ठीक है, फोकी अपने कोल की हुंदी है, फोकी अपने कोल हुंदी है ± AE0। ठीक है जी, सो मैंने इसकी हेल्प के नाल की करना है, मैंने फाइंड आउट करनी है बी दी वैल्यू जिहदे विच मैनूं ए दी वैल्यू पता है, तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे को जो पॉइंट है दैट इज ± 4E0। ठीक है, और मैनूं पता है कि जो 4E पॉइंट है वो मेरे को किहदे इक्वल होगा, इन्होंने कहा है कि जी दोनों ही इसेंट्रिसिटीज ने फोकी ने वो की कर रही ने कोइंसाइड करनिया ने। अगर कोइंसाइड कर रही ने तो थोड़े कोल पहला तो यदि फोकी कट लो, यदि फोकी भी मेरे को की होंगी है ± AE0 ही होंगी है हाइपरबोला की भी। हाइपरबोला की फिर मेरे को कितनी आ जाएगी, मेरे को आ जाएगी ± AE, तो मतलब मेरे को आ गया ± A की वैल्यू मेरे को कितनी है इतनी, A की वैल्यू मेरे को है 12 अपॉन 5 और इंटू ई की वैल्यू मेरे को है 15 अपॉन 12, तो कुल मिला के मेरे को सेंट्रिसिटी 3 आ गई। सो मेरे को पॉइंट कितना आ गया ± 30 आ गया। तो क्लीयर जी गल है कि इतने भी मेरे को 4E' इनू E' का नाम दे दो, दूजी सेंट्रिसिटी यदि सेंट्रिसिटी ई सी, यदि सेंट्रिसिटी मैंने E' ले ली। सो यदि सेंट्रिसिटी मेरे को 3 के इक्वल होगी तो E' की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, मेरे को आ गई 3/4 के इक्वल आ गई। सो हुण E की वैल्यू भी हैगी है, A की वैल्यू भी हैगी है, B की वैल्यू आराम नाल फाइंड आउट हो सकती है। किवें फाइंड आउट हो सकती है, दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर, B स्क्वायर मैंने पता नहीं विच इज इक्वल टू A स्क्वायर जो 16 है और 1 - E स्क्वायर जो मेरे को कितना है 9 अपॉन 16। ठीक है, इन्हू सॉल्व कर लो, सॉल्व करके थोड़े को B स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और इन्होंने B स्क्वायर की वैल्यू ही पूछी है। B स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी, B स्क्वायर की वैल्यू मेरे को आ जाएगी आई थिंक 7 अपॉन 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा तो कहला 7 आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, सी ऑप्शन इज राइट हेयर। ठीक है, अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के उपर। 18 क्वेश्चन के पूछा होया है, कहते इफ ये 3 पॉइंट दिते हुए ने एंड दिस देन ओके फोकी 1 दी हुई है, 2 दी हुई है। ठीक है, नहीं ओके, देन PF1 + PF2 कि इक्वल होएगा। ठीक है जी, सो ये मैंने दिते हुए ने 3 पॉइंट्स एंड यही इलिप्स दिता होया है। सो ये मैंने पूछा गया कि फोकी 1 ते फोकी 2 जो है वो मेरे को किस दे इक्वल होएगा, PF1 PF2। ठीक है, सो ये मेरे को फर्स्ट फोकस है, ये मेरे को सेकंड फोकस है, मतलब इसका जो फोकस है वो मैंने दिता होया है। सो पहला तो इलिप्स की इक्वेशन मेरे को की है, इलिप्स की इक्वेशन मेरे को है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 400 नाल डिवाइड कर दो। अगर तुम इतने 400 नाल डिवाइड करोगे तो मेरे को कितना बन जाएगा, इतने बन जाएगा 25 और इतने बन जाएगा 16 और इतने बन जाएगा 1। सो ये मेरे को की बन गई सिंपल जी इक्वेशन बन गई किसी इलिप्स की इक्वेशन बन गई। हुण जो ये मेरे को इलिप्स की इक्वेशन बन गई, मैंने इन्होंने फोकस दिता होया दैट इज प्लस माइनस 3 एंड 0। तो मतलब ए ई की वैल्यू मेरे को कितनी है, 3 है। ठीक है, ए ई की वैल्यू मेरे को कितनी है, 3 है। अगर ए ई की वैल्यू मेरे को 3 है तो क्लीयर जी गल है, ए मेरे को कितना सी 5 सी। ठीक है, ई मेरे को कितना है 3/5 आ गया, तो ई की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 3/5 आ गई। ठीक है, सो इन्होंने मैनू कहा है कहते अगर तुम PF1 कड्डो तो PF2 कड्डो तो वो किहदे इक्वल आऊगा, मतलब P पॉइंट का F1 तो डिस्टेंस एंड P पॉइंट का F2 तो डिस्टेंस और फिर दोनों का एडिशन मेरे को किस दे इक्वल आऊगा। P इज़ अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, जिसका तुसीं की कड्डना है। हुण देखो मैंने A की वैल्यू इत्थे दित्ती हुई है, सारा कुछ दिता हुआ है। अगर तुसीं देखो ध्यान नाल इत्थे मैनू दिता हुआ है सम ऑफ 2 डिस्टेंसिस, है ना, तो एक तरीके नाल मेरे को सम ऑफ अ पॉइंट दिता होया, सम ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये मैनू की दिता होया सम दिता होया। ठीक है, मतलब थोड़ा पता ही है कि सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मेरे को किहदे इक्वल हुंदा है 2 × A दे इक्वल हुंदा है। सो 2 × A मतलब 5 विच इज इक्वल टू 10। सो ये मेरे को सीधा सीधा भी निकल सकता सी विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, यदि थोड़ा लोड़ नहीं भी पैनी सी बट चलो हो गया। ठीक है, क्लीयर है, चलो अगे चलते हैं। सो अगे मैंने दिता हुआ है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दे विच है द लोकस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस कढ़ना है। ये मेरे को की है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दसो जी ये सर्कल है, सर्कल का देखो ये है नहीं। ठीक है, सो सर्कल तो ये है नहीं। पैराबोला है, पैराबोला भी है नहीं। पेयर ऑफ लाइन्स है जो लाइन्स ऑफ अ लाइन्स एट राइट एंगल है। ठीक है, सो देखो ये अपने को की बनया हुआ है। इस क्वेश्चन के आपको क्लीयरली पता लग रहा है कि इतों मेरे को एक्स दी 2 वैल्यूज होंगियां। ठीक है, एक मेरे को प्लस वाई होएगी, एक मेरे को माइनस वाई होएगी। सो यही एक मेरे को लाइन किद्दां बनेगी, एक मेरे को लाइन ओबीयसली ये बनूगी तो एक मेरे को लाइन ओबीयसली ये बनूगी। तो तुसीं दोनों ही देख पा रहे हो कि दोनों लाइन्स ने दोनों की ने राइट एंगल ते एक दूजे नूं मिलदियां ने। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज राइट हियर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 इन एन इलिप्स कहते एक इलिप्स के लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस की जो लेंथ है मतलब 2 × B की वैल्यू जो है वो मैंने 8 दी हुई है। तो B की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 4 आ गई। एंड द इसेंट्रिसिटी मेरे को कितनी दी हुई है √5/3। सो मेरे को कितना हो गया ई स्क्वायर की वैल्यू मेरे को 5/9 आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 16 आ गई। इन्होंने की है मेजर एक्सिस थोड़े को की होंगे ने ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू तुम फाइंड आउट कर सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, सो मेरे को कितना हो गया 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इतने मेरे को हो गया 4/9। ठीक है जी, सो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 16 × 9/4। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो ए की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई +-6। मतलब हुण देखो इन्होंने क्या द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। हुण इत्थे 6 भी ऑप्शन अवेलेबल है, मेरे वांगू तुसीं भी शायद 6 जल्दी जल्दी च लगाओ दो तो लगाना नहीं है। आपां नूं लेंथ पूछी गई है, लेंथ मेरे को कितनी होंदी है 2a विच इज 12। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 द कर्व विद द पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। कहते इन्हां दे मिला के किहड़ी कर्व बनती है, पैराबोला बनती है, इलिप्स बनती है, हाइपरबोला बनती है, नन बनती है। ठीक है, सो एक तो मैंने दी हुई है x इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5 cos थीटा। सो मैं इतों की करती हाँ x माइनस अल्फा/5 मतलब इज इक्वल टू कोस थीटा की वैल्यू कट लैनी है। ठीक है जी, सिमिलरली मेरे को हो गया y माइनस बीटा/4 मेरे को बन गया साइन थीटा कट लिया। तो दोनों की स्केयरिंग ते एडिंग कर दो, स्केयरिंग ते एडिंग करोगे तो मेरे को साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर बन गया। इतने मैं स्केयरिंग करूँगी x माइनस अल्फा स्केयर/25 प्लस y माइनस बीटा स्केयर/16। तो क्लीयर जी गल है, इलिप्स बन रहा है। तो विच ऑप्शन इज राइट है, बी ऑप्शन इज राइट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 कहते इफ जेकर मेरे को आह कॉनिक की इक्वेशन दी हुई है तो जो तुम कढ़ोगे ठीक है वो मेरे को की है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक तरीके डिटर्मिनेंट कह सकते हो। तो यह करता है रिप्रजेंट करता है इलिप्स नूं। हुण आपां नूं इलिप्स की इक्वेशन कंडीशन चंगी तरह पता है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड मेरे को की होना चाहिए एच स्केयर जो है वो ए बी तो घट होना चाहिए। सो एच स्केयर ए बी तो घट मेरे को कितने है सी ऑप्शन के है। ठीक है, अगर मैंने पूछ लैन कि हाइपरबोला है तो हाइपरबोला कहांगे कि यह मेरे को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और एच स्केयर की वैल्यू मेरे को की होनी चाहिए है ए बी तो ग्रेटर होनी चाहिए है। अच्छा, जेकर मैंने पैराबोला कह दें तो पैराबोला की कंडीशन होंगी है कि एच स्केयर की वैल्यू ए बी के इक्वल होगी। अच्छा, जेकर मैंने सर्कल पूछ ले तो सर्कल के मैं कहूँगी कि ए बी इक्वल टू 0 है और एच जो है वो भी इक्वल टू 0 है। इजी
चलो अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के उपर। द लाइन, एक लाइन दी हुई है, मीट द इलिप्स, इलिप्स नू मीट करती है इन द रियल पॉइंट इफ, कहते जेकर थोड़े को टी की वैल्यू लैस दैन 2 है, लैस दैन इक्वल टू 1 है, समथिंग समथिंग सब कुछ दिता हुआ है। हुण जेकर मेरे को इत्थे एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और इत्थे मैंने कहा है कि वह इस नू की करती है, मीट करती है इलिप्स नू, ठीक है, इन द रियल पॉइंट्स इफ, जेकर मेरे को टी की वैल्यू इन्होंने सारिया तो की होएगी, ठीक है जी। तो चलो देख लैंने, इसनूं थोड़ा जिहा समझ लैंने। इस क्वेश्चन के आपां नूं दिता होया है, कहते एक्स की वैल्यू है दैट इज ए टी स्केयर, मतलब एक लाइन दी हुई है, एंड इलिप्स दिता होया एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। हुण इहदे विच जे मैं एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू नूं पुट करदा तो मतलब मेरे को एक्स अपॉन ए जो है वो टी स्केयर के इक्वल आ गया। तो क्लीयर जी गल है, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर मेरे को कितना बन जूगा, टी की पावर 4 बन जूगा। जेकर मीट कर दिया तो आप पुट कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है जी। तो इतों मेरे को की हो जूगी, वाई की वैल्यू आ जूगी। तो वाई की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, वाई स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर 1 माइनस टी की पावर 4 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो मतलब मेरे को बी स्केयर ये फैक्टर्स बन गए 1 प्लस टी स्केयर एंड 1 माइनस टी स्केयर, इदा करके ये फैक्टर्स बन गए, बिल्कुल बन गए। हुण अपने को की है, कहते जेकर मेरे को ये रियल पॉइंट्स के उपर होंगी है, रियल पॉइंट्स का मतलब की हो गया कि जेकर देखो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों तो पॉजिटिव ही ने, तो इनू भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, ताही मेरे को स्केयर की वैल्यू रियल नंबर आऊगी। सो ये मेरे को की होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू टी स्केयर हो गया, ठीक है। तो क्लीयर जी गल है, मैं की कह सकती हूँ कि मोड ऑफ टी जो है वो लेस दैन 1 है, ठीक है। सो विच लेस दैन इक्वल टू 1, नाल इक्वालिटी भी है। सो विच ऑप्शन इज राइट है, बी ऑप्शन इज राइट है, ठीक है जी। अगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के उपर। 24th क्वेश्चन है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी है। देखो हाइपरबोला मैंने की दिता हुआ है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है, इन्हों इधर ले जाने 3 अपॉन रूट के 1999 बन गया, ठीक है। मैंने इधर 1 चाहिए, खैर इधर ही ले आने वापस, ठीक है। सो क्योंकि मैंने 1 चाहिए तो मेरे को कितना बन जूगा एक्स स्केयर, मतलब इन्ना कुछ लिखने की लोड़ नहीं है, मेरे को सीधा समझ आ रहा है कि ए स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, आह आ गई, ठीक है। हुण इन्हें सोल्व ना करन लग जाओ कि पहले इसमें सोल्व करिए, ठीक है। बी स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, आह सेम वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, बी स्केयर की आ गई, ठीक है। ए स्केयर की वैल्यू आ गई, बी स्केयर की वैल्यू आ गई, तो इस मैंने की दसना है, इसेंट्रिसिटी दसनी है ऑफ द हाइपरबोला। ओके, वैल्यूज आर सेम, इक्वेशन सही है। चलो देखते हैं, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है तो मेरे को कितना हो जाएगा, बी स्केयर विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 1। तो क्योंकि मेरे को दोनों वैल्यू सेम ने तो मैं कह सकती हूँ बी स्केयर इज इक्वल टू 1 है, तो मेरे को प्लस माइनस 1 हो गया, तो सर्कल बन गया, वही मैं सोच रही थी। ओके रुको एक मिनट, देखते हैं। ओके सॉरी, मैं इतने अजीब जी मिस्टेक की है। सो इतने मेरे को की बन गया, देखो मेरे को सीधी सी गल है कि ए स्केयर जो है वो बी स्केयर के इक्वल है, वैल्यू पुट करके सोल्व करने की लोड़ नहीं। सो मेरे को कितना बन गया, ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 1 बन गया, ठीक है। मैंने इतने 1 लिखा ही नहीं दरअसल। सो ई स्केयर माइनस 1 तो मतलब ई स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ए की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, √2 आ गई। देन विच ऑप्शन इज राइट हियर, ए ऑप्शन इज राइट हियर। Last question of today's class is 25th question. The eccentricity of the hyperbola can never be. इन्हां विचों किहड़ी जो है वो eccentricity of hyperbola कदे भी नहीं हो सकती। सो आपां नूं चंगी तरह पता है कि जो भी hyperbola की गल हुंदी है, hyperbola की eccentricity हमेशा 1 तो वड्डी हुंदी है। तो इन्हां चों जिहड़ी भी वैल्यू तुहानूं लगदा है कि 1 तो वड्डी नहीं हैगी, वो तुहाडे कोल eccentricity जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। सो देख लो तुहाडे कोल किहड़ी ऑप्शन राइट हो जाती है। देखो जो तुसीं 9/5 करोगे, ठीक है, तो मेरे को कितना बन जाता है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ बनूगा, और इसका भी अगे रूट बनूगा। हुण 1 पॉइंट समथिंग कुछ का जो रूट है वो ऑब्वियसली मेरे को की होगा, लेस दैन 1 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। सो ऑब्वियसली मेरे को की होगा, लेस दैन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज राइट, क्योंकि देखो इतने भी मेरे को चाहिए लेस दैन 1 बन रही है, पर 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है और 2 है, तो इन्हीं चीज़ों तो ही आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लीयर है। देन विच ऑप्शन इज राइट है, ए ऑप्शन इज राइट है। वेट इसमें थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, मैंने थोड़ी गड़बड़ लग रही है, रुको इसमें कैलकुलेट करते हैं आप। अपने को जो 1 मिनट, हाँ जी, अपने को जो है फर्स्ट ऑप्शन, फिर मेरे को हाईलाइटर आ जाता है, हाँ जी, अपने को जो है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज √9/5, है ना। सो इसमें मैं क्या लिख सकती हाँ, 3/√5 लिख सकती हाँ। सो ये तो मेरे को मेरे ख्याल ग्रेटर दैन 1 हो गया, ठीक है। सॉरी माई बैड, पता नहीं मैंने किमें कैलकुलेशन की। सो √5 की वैल्यू ऑब्वियसली मेरे को की होंगी 3 तो छोटी होंगी, सो ये वैल्यू मेरे को ग्रेटर दैन 1 होगी। सो ए ऑप्शन मेरे को हो सकता है। बी ऑप्शन चेक कर लेने, दैट इज √1/3 हो गया, दैट इज 2/3। अगर 2/3 हो गया तो आप समझ गए कि ये मेरे को वैल्यू लेस दैन होती है। सो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। सो सी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेने, तो 3/2
2√2 हो जाएगा, तो अब भी मेरे को ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, डी तो ग्रेटर देन 1 है ही, सो सॉरी बी ऑप्शन इज राइट हियर, बाकी ऑप्शन सही नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो उम्मीद है ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ तो पूछ लियो कि मैम हाँ जी इतने डाउट है ये इदा सी या इदा सी, ठीक है, सो ईजीली तुम पूछ सकते हो कमेंट सैक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब, जेकर तुम फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसक्राइब कर लियो, लाइक तो शेयर तो तुम करना ही है ना, ड्यूटी है थोड़ी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।